اچھا صاحب، آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں جو ہندوستان کی اس وقت اپنی اندرونی صورتحال ہے؟ مودی جو ہے وہ اس وقت انڈر پریشر ہے، آئے پاکستان ایک بالکل نئی تاریخ انہوں نے ایک طریقے سے رقم کی، کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، اور وہ واپس جاتے ہیں اور تھوڑے ہی دنوں میں بعد جو ہے پٹھان کوٹ ہو جاتا ہے۔ وہاں کا جو ایکسٹریمسٹ ایلیمنٹ ہے وہ اس وقت پریشرائز کر رہا ہے مودی کو، یہ انہیں احساس دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ یہ تم نے جو کیا غلط کیا۔ مودی کی اس وقت جو پوزیشن ہے اس کے بارے میں کیا آپ تجزیہ کریں گے ہندوستان کے اندر؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ مودی صاحب جو ہے وہ میکاویلین پولیٹیشین بھی ہیں۔ ہی ایکٹڈ لائک اے فاکس وین ہی کیم ٹو لاہور۔ انہوں نے ایک فرینڈلی جسچر دینے کی کوشش کی۔ اس سے زیادہ میں جمپ نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ کیا ہندوستان کی ریاستی پالیسی آج بدل چکی ہے لاہور یاترا کے بعد؟ جس کا جواب نہیں ہے۔ کیا پراکسی وار ختم ہو چکا ہے ریجن میں جو انڈیا کا اسٹریٹجک پرسپیکٹو ہے؟ وہ نہیں ہے۔ آج پی آئی اے پہ حملہ ہوا ہے شیو سینا کا، کیا یہ سیمی آفیشل سٹرکچر کا ایک ایکسٹریمسٹ گروپ پہ کنٹرول لوز کرنے والی بات ہے؟ جو نہیں ہے۔ اسی طرح انڈین میڈیا کا جو پبلک نیریٹو ہے پاکستان کے خلاف آج بھی نان کائنیٹک وار فیئر جو ہے انڈیا کا جاری ہے، جس میں پبلک نیریٹو انٹرنل بھی اور ایکسٹرنل بھی وہ میڈیا بناتی ہے اور میڈیا کو فیڈ کیا جاتا ہے انٹیلیجنس ایجنسیوں کا۔ وہ آج بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ٹارگٹ کون؟ ٹارگٹ آئی ایس آئی، ٹارگٹ ہماری فوج۔ جب پٹھان کوٹ واقعہ ہوتا ہے، جب جلال آباد میں یا مزار شریف میں انڈین قونصلیٹ پہ حملے ہوتے ہیں تو پھر ہماری فوج کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اسی طرح پھر دوسرے واقعات جو ہوتے ہیں اس میں ہماری فوج کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے۔ اب ابھی تک کچھ بھی معلوم نہیں، تو ان کا جو سیٹ نیریٹو ہے وہ آج بھی وہی ہے جو مودی صاحب کے لاہور کے آنے سے پہلے تھا۔ تو آپ ڈاٹ خود ملا دیجئے۔ تو اس کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے خیال میں ہمیں اتنا اپنا ایکسائٹمنٹ جو ہے روکنا چاہیے۔ ایک لاہور کے وزٹ کے بعد جو ہے یہاں پہ ساری ہماری جو نیریٹو ہے وہ ٹھس ہو گئی، اور ہم جو ہے ایک دم سے ہاں کی بات کر رہے ہیں۔ انڈیا ایک سپر پاور، اس کی مینٹلٹی ہے۔ انڈین ایلیٹ آج بھی سمجھتی ہے کہ وہ ساؤتھ ایشیا کے سپر پاور ہیں۔ اپنے ہمسایوں کے ساتھ جو رویہ ان کا ہے اپنے ٹرمز پہ وہ جو ہے ڈیل کریں گے۔ ابھی یہ مائنڈ سیٹ بی جے پی کا بھی ہے، جناب مودی صاحب کا بھی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ایک جو کیک ہے اس کو کھائیں نا، ہمیں جو ہے ایک نتیجے پہ نہیں پہنچنا چاہیے۔ ہاں، امن کے ہم خواہاں ہیں، لیکن اگر ہم یہ تاثر دیں کہ ہم بھیک مانگ رہے ہیں، یہ اچھا امپریشن نہیں ہے، یہ کمزوری کی علامت ہے۔ ایک ڈگنیفائڈ، امن، اچھے نیبر کے ساتھ سب سے زیادہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے۔ لیکن جس طریقے سے ہم لاہور کے بعد یہ جو آپ نے بات کی، میں ذرا ایمبیسڈر صاحب کا اس پہ رسپانس لینا چاہ رہا تھا۔ ایمبیسڈر صاحب، کیا یہ تاثر بن رہا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ امن کی بھیک مانگ رہا ہے؟ پاکستان جو ہے یہ یہاں بلکہ یہ بھی کرٹیسزم ہو رہا ہے کہ یہ نواز شریف صاحب کی جو ہے یہ پالیسی ہے جس کی وجہ سے پاکستان کا ایسا بنتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جس طرح پاکستان جو ہے وہ گھٹنوں کے بل جو ہے وہ بیٹھ گیا۔ یہ درست ہے؟ یہ تاثر، یہ سوچ کیا واقعی آپ کو ایسا لگتا ہے؟ اس سوال کی طرف آنے سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ ایک وزٹ سے جو فالٹ لائنز ہیں جو پاکستان اور انڈیا کے ریلیشن شپ میں 1947 یا اس سے پہلے سے موجود ہیں، وہ چینج نہیں ہوتی اور نہ کبھی چینج ہوں گی۔ کے سامنے خواہ وہ شملہ ایگریمنٹ آ جائے، خواہ وہ واجپئی صاحب آ جائیں یا کوئی دوسرا آ جائے، یا مشرف صاحب کر وہ سافٹ نا بارڈر کی بات کرنا، جب تک وہ فالٹ لائن اروڈ نہیں ہوں گی اس وقت نہیں، وہ فالٹ لائن اپنی جگہ پہ موجود ہے۔ اب یہ کہنا ہے کہ جی ان کا نیریٹو چینج ہو گیا یا ہمیں اس کی طرف دیکھنا چاہیے، چینج دیکھنی چاہیے، میرا خیال ہے کہ میں ان کا ورڈ یوز کروں گا جمپنگ دی گن والی بات ہے۔ وہ موجود رہیں گی۔ وہ واحد ملک ہے جس کے ساتھ ہم نے 3 جنگیں لڑی ہیں، ہم نے خون بہا، اور وہ پراکسی وار ہماری ٹیریٹری پہ کرتے رہے ہیں۔ لیٹس بی فرینک، ہم نے بھی ادھر کی ہے۔ ہم دونوں دشمن ہیں، ہمسائے ضرور ہے لیکن دشمن ہے، اور اس لیے یہ سوچ لینا کہ ایک میجیکلی سارا کچھ بینڈ کے ساتھ آ گیا تو سارا کچھ ہو جائے گا، وہ نہیں ہوگا۔ اس لیے ہمیں اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ اس نئی سٹیٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس سے ٹینشن کم ہوئی ہے۔
जिससे ज़रा सुकून आ गया, खित्ते में सुकून आ गया, हमारे फ्रेंड्स के दिलों में। जो लोग हमारे जो मेगा प्रोजेक्ट आप बन रहे हैं उसमें कॉन्फिडेंस की फजा पैदा हुई है। ये छोटे मोटे जो ना PIA पे अटैक हुआ, जो ना जलालाबाद में हमारे उस जगह पे हुआ, और उसका वहाँ के अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट ने पहली दफ़ा हमारे प्रेसिडेंट से बातचीत की, उधर भी चली। ये एक दूसरे से चीज़ें निकल रही हैं और ये अपॉर्चुनिटी है। अगरचे ये चैलेंजेस बहुत हैं, लेकिन हर चैलेंज में एक छुपी हुई चीज़ होती है, वो अपॉर्चुनिटी होती है। हम हमेशा से दोनों मुल्क, मैं ये नहीं कहता पाकिस्तान, दोनों मुल्क, और चूंकि वो बड़ा मुल्क है इसलिए वो ज्यादा उस पे उसका है ना, वो खुद भी कहता है कि मुझे बालादस्ती होनी चाहिए, मैं बिग हूं, तो वो इस हवाले से भी उसे दिखानी चाहिए। तो वो हमारे पे ज्यादा रोब डालने की कोशिश करता है, फिर वो इत्तेफाक से उसकी इकॉनमी हमसे बड़ी है, वो प्रोग्रेस भी कर ली गया। उसके बाद उनमें डेमोक्रेसी रही है जिसकी बिना पे उसको अप्रिशिएट होता है। वहाँ रूल ऑफ लॉ का बेहतर है एज कम्पेयर टू पाकिस्तान। इस पे मजीद बात करते हैं, मैंने ब्रेक के लिए जाना है। अच्छा, मैं जो आपके पॉइंट की, मैं पॉइंट जो है वो बिल्कुल ब्रेक के बाद जो है आपकी तरफ आता हूँ कि क्या ये जो तासुर है कि पाकिस्तान भीख मांग रहा है अमन की, पाकिस्तान, इस पे आप मुझे बिल्कुल जो है वो रिस्पॉन्स दीजिएगा। अच्छा सही साहब, जनरल साहब जो बात कर रहे हैं, संजीदगी और बुर्दबारी नजर आ रही है हमारी पॉलिसी में, लेकिन ये जो शिकायतें हमारे अंदर मौजूद हैं, FC के कमांडेंट जो गिला कर रहे हैं, नेक्टा के हवाले से जो आप आवाज उठाते हैं और पॉलिटिकल कमेंटेटर्स आवाज उठाते हैं, ये वाकई आपको लगता है कि हम वाकई इतने संजीदा हैं कि जो असल मसाइल हैं जहां पे हमें पैसा खर्च करना चाहिए, जिस ज़रबे अज़ब का हम जिक्र करते हैं, जो फौज गिला करती है गवर्नेंस के हवाले से, उसके हवाले से हमारी सिविल हुकूमत संजीदा है, उनकी पॉलिसियां आपको ठीक लगती हैं? अच्छा, मैं सिर्फ एक, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं उस बहस में थोड़ा सा इनपुट डालूं इंडिया के हवाले से, पहले कि मैं आपकी बात पे आऊं। देखिए, इंडिया के हवाले से बिल्कुल हमें हकीकत पसंदाना रवैया रखना चाहिए। अमन हमारी जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर पाकिस्तानी अमन चाहता है, लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जो इस पूरे खित्ते में अपने आप को मजबूत मुल्क गर्दानते हुए एक एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बनाना चाहता है। पाकिस्तान से लेकर अफगानिस्तान, साउथ एशिया, इसी तरह उसके जो रहा है, उन्होंने एक प्रॉक्सी वॉर शुरू किया है, चाइना, वियतनाम, भूटान, फिर पाकिस्तान, ये सारा इनके के लिए एक एरिया ऑफ ऑपरेशन है। दूसरी अहम बात ये कि आज 21st सेंचुरी जो है वो दो ममालिक की एक गेम पे बनी है। कमजोर ममालिक में जो है वो एक प्रॉक्सी ग्राउंड के लिए तैयार किया जाएगा, और जो मजबूत ममालिक हैं वो उनको एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस के लिए रखने की कोशिश करेगा या ट्रीट करने की कोशिश करेगा। तो हमें भी ये समझना है कि इंडिया ने अपनी जो पॉलिसियां वो चेंज नहीं की है। हाँ, अभी टेक्निकल लेवल पे बातें हो रही हैं, ठीक है, लेकिन हम बदकिस्मती से या खुशकिस्मती से एक ऐसे रीजन में है जहां पे इंडिया एक नेवल पावर है, जहां पे उनकी इकोनॉमी आइंदा 10 साल में 12 ट्रिलियन तक पहुंच जाएंगी, और हम फिर मुकाबला करेंगे। जहां पे हम एक ऐसी मिसाल देख रहे हैं कि पाकिस्तान पहले दफा जो है, हम अपने मसाइल को हल करने के लिए हमें 15 साल लगे हैं, और हमारी जो इकोनॉमिक टर्न अराउंड है वो अभी तक मालूम नहीं कि 2000 जो GDP है इस वक्त $बिलियन की, क्या हम 1 ट्रिलियन पे भी आइंदा 10 साल में पहुंच जाएंगे? तो उनका 2% जो है फौजी बजट हमारे 2% बजट के बराबर आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते कि उनकी फौजी कुव्वत किस तरह आगे बढ़ेगी। तो अब मैं दाखिली उस प्रायोरिटी की तरफ आता हूं। हमारे लिए बेहतरीन कोर्स ये है, इंडिया के साथ हम अपने मसाइल चाहे इंक्रीमेंटल तरीके से हल करें, चाहे हम वर्किंग रिलेशन की बुनियाद पे या कोई स्टेलमेट रहे, एक चीज हमने करनी है कि हमने अपनी इकोनॉमी का टर्न अराउंड करना है। अगर हम वाकई इंडिया का मुकाबला किसी लेवल पे या दूसरे ममालिक का करना चाहते हैं, ये शर्मनाक है कि हम अपनी दिफा को और अपनी फॉरेन पॉलिसी को लग्जरी समझते हैं, हम उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करते। FCO, फौज और 2% बजट कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान पिछले 2 साल से टेररिज्म का शिकार और उसके खिलाफ ऑपरेशन जारी हैं, और इसके लिए हमने जो वसाइल मुहैया किए हैं वो काफी नहीं है। ज़रब अज़ब के हवाले से आपने देखा, कराची में जो रिसोर्सेज नेक्टा, IDPs के लिए फौज कह रही है कि हमें वसाइल दो, हम नहीं दे रहे। पुलिस के हालात वो करप्शन करके अपनी स्टेशनरी और पेट्रोल पूरा करते
कहते हैं जी पैसा हमारे पास नहीं है। क्या पैसा 10 अरब डॉलर हमारा हर साल जो है स्मगलिंग में लॉस नहीं होता? क्या हमारा तकरीबन 11 बिलियन डॉलर अंडर इनवॉइसिंग में नहीं जाता? क्या हमारे 2000 बिलियन रुपए से ज्यादा करप्शन में नहीं जाते? असल में विल नहीं है, वरना पाकिस्तान एशियन टाइगर है, ये सऊदी अरब है, साउथ विल नहीं है। इसका मतलब तो फिर ये हुआ, जो बात आप कर रहे हैं, जिस तरफ आपने निशानदेही की, वक्त भी मेरे पास खत्म है, मैं चाहूंगा तीनों पार्टिसिपेंट्स इस पे जरा कमेंट कर दें। ये जो सिनेरियो डेवलप होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी निशानदेही अजदी साहब ने की है, जनरल साहब, फिर तो ओबामा जो एनालिसिस कर रहा है कि वो कह रहा है कि कई दहाइयों तक जो है वो अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा। अगर यही पॉलिसी हमने जारी रखी तो फिर ओबामा को हम किस बात का उससे गिला करें? उसका एनालिसिस ठीक है। ओबामा ने तो मेरा ख्याल है कि बड़ी अच्छी बातें भी अपनी तकरीर में की हैं, मुसलमानों के हक में की हैं। उन्होंने नाम लिए बगैर कहा कि जो मुसलमानों के खिलाफ बातचीत कर रहे हैं, जो लीडर्स, वो बड़ा जुल्म कर रहे हैं, बड़ी गलत बात कर रहे हैं। तो ये इस हद तक तो बिल्कुल ठीक है। जो बात साहब ने अभी की वो बिल्कुल ठीक है। तरजीहात हमें ठीक करनी चाहिए, इकोनॉमी हमें ठीक करनी चाहिए, इसके अलावा हमारे लिए बड़े मुश्किल हालात आएंगे, और चांस कोई नहीं। लेकिन एक बात जो आप कंपैरिजन करते हैं ना कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने कहा कि जी इस साल में हम दहशतगर्दी का तकरीबन खात्मा कर देंगे, तो देखिए दोनों का कॉन्सेप्ट बड़ा डिफरेंट है। इन्होंने अपनी फौज का, वो फौज है जो लड़ रही है, उसने, वो फौज का कमांडर है, उसने उनका मोराल भी देखना है, उसने कौम का मोराल भी देखना है। ये बड़ा वो एक डिस्पैशनेट सी वो बात कर रहा है, मतलब है वो एक बड़े लेवल से, तो वो तो किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन हमने इस तमाम कौम को साथ लेकर चलना है, इनका मोराल हाई रखना है, और हमने इस जंग में इंशाअल्लाह ताला फतह हासिल करनी है। बैरिस्टर साहब, बेसिकली ये जो पाकिस्तान है, इसके अंदर वसाइल हैं, लोग भी हैं, जिसकी तरफ चिकजई साहब ने बात की, नीयत वो कह रहे हैं, कमिटमेंट और नीयत की में फतूर है। कमिटमेंट में कमी है, नीयत में फतूर है, और बातों में झूठ है। जो दावे है ना उसमें झूठ है। हाँ, तो ये जो तजाद है, ये हमारा डाउनफॉल का की तरफ हमें लेके जाता है। और खुदा के लिए मेरी ये अपील है सब तजिया नगारों से भी कि अपने आप को इंडिया के साथ कंपेयर करना बंद करें, अपने पे फोकस करें, अपने पांव मजबूत करें, अपनी आंखों को जरा चुकन्ना बनाएं, और हाथों में तेजी पैदा करें। इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे। अगर हम दूसरे को देख के जेलस होते रहे, उन्हीं को क्रिटिसाइज करते रहे, तो हमारी स्टेट यही रहेगी आइंदा 10 सालों में भी। अच्छा जही साहब, लास्ट 30 सेकंड सर, आपके कंक्लूडिंग रिमार्क्स। मेरे ख्याल में अगर ये हमारी चौथी नस्ल है, ये नाकाम हो जाएगी अगर हम ये समझने से कासिर रहे कि हमारी आबादी बढ़ रही है, जो खुद एक टाइम बम है, एटम बम है, एजुकेशन हमारा जीरो है, और अभी तक हम मुल्क को पैसिफाई नहीं कर सके। लिहाजा अगर इंक्रीमेंटल तरीके से हम मसाइल इसी तरह हल करते रहेंगे, अनदर 100 ईयर्स लगेंगे। क्या इसके लिए हम तैयार हैं, या वाकई हम मसाइल को ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए करना चाहते हैं? ये चॉइस वैसे कौम हमने सोचना है। बिल्कुल ठीक जी, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। ओबामा साहब कहते हैं कि पाकिस्तान कई दहाइयों तक अदम इस्तेहकाम का शिकार रहेगा। ओबामा साहब को अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि इस अदम इस्तेहकाम में अमेरिकन पॉलिसीज का कितना कसूर है। अगर वो अपनी पॉलिसीज जो है वो ठीक कर लें तो शायद हम बहुत पहले इस अदम इस्तेहकाम से बाहर आ जाते। पाकिस्तान इज एट अ पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन, और हमने ये जंग जीतनी है, दूसरा हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं।